کیا کبھی اس بات پر گہرائی سے غور کیا گیا ہے کہ خاندانی روایات مطلب جیسے قریبی رشتوں کی حدود یا مختلف عقائد کے درمیان شادی کے جو اصول ہیں وہ صدیوں سے کس طرح ہمارے معاشرے کے پورے ڈی این اے کو تشکیل دے رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو بظاہر تو ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ لگتا ہے، لیکن جب ہم تاریخ اور روایات کی تہہ کھولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان اصولوں کے پیچھے کتنی گہری سوشل انجینئرنگ چھپی ہوئی ہے۔ بالکل، اور ہمارے چینل پر خوش آمدید، جہاں ہم کتابوں اور پیچیدہ خیالات کو بالکل آسان الفاظ میں سمجھاتے ہیں۔ اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک بہت ہی دلچسپ سفر پر نکل رہے ہیں۔ جی ہاں، ہم دیکھیں گے کہ قدیم مکہ میں بچوں کو صحرا کیوں بھیجا جاتا تھا اور اس سے کیسے ایسے رضائی رشتے بنے جو خونی رشتوں سے بھی زیادہ طاقتور تھے۔ ہاں، اور پھر ہم ان حیاتیاتی فلٹرز پر بات کریں گے جو کزن میرج اور ممنوعہ خونی رشتوں کا تعین کرتے ہیں، اور آخر میں ہم اس پیچیدہ نظریاتی بحث کی طرف جائیں گے کہ مختلف مذاہب بالخصوص اہل کتاب کے ساتھ شادی کے حوالے سے کیا اصول بنائے گئے، اور ظاہر ہے ان کے پیچھے کیا نفسیاتی وجوہات تھیں۔ تو یہ بحث بہت معلوماتی ہونے والی ہے۔ اور ہاں، آگے بڑھنے سے پہلے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارے یہ تعلیمی مباحث پسند آتے ہیں تو ابھی ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کا سپورٹ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ بالکل، اس سے ہمیں مزید تحقیق کرنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ تو میں یہ واضح کرتی چلوں کہ آج ہم جس کتاب کا جائزہ لے رہے ہیں اس کا نام ہے فیملی سٹرکچر ان اسلام، اور ہماری اس گفتگو کا مقصد کتاب کے اصل مواد کو کسی بھی طرح تبدیل، حذف یا موڈیفائی کرنا ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، ہمارا مقصد صرف ان خیالات کو آسان بنا کر پیش کرنا ہے تاکہ ہر کوئی انہیں بخوبی سمجھ سکے۔ ہم یہاں کسی نظریے کی وکالت نہیں کر رہے ہیں۔ صحیح، تو ناظرین سے یہ بھی کہوں گی کہ ہماری دیگر تعلیمی ویڈیوز کو بھی ضرور چیک کریں۔ خیر، آئیے کتاب کے پہلے اور شاید سب سے پراسرار حصے سے شروع کرتے ہیں۔ مکہ کے معاشرتی ماحول کے حوالے سے ایک بات جو مجھے بہت حیران کن لگی وہ رضاعت یعنی دودھ پلانے والی ماؤں کا رواج تھا۔ وہ دیہات میں بھیجنے والا رواج نا؟ ہاں بالکل، کتاب بتاتی ہے کہ مکہ میں یہ ایک عام رواج تھا کہ پیدائش کے فوراً بعد بچوں کو پرورش کے لیے دیہات میں بدو قبائل کے پاس بھیج دیا جاتا تھا، جبکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ مدینہ میں ایسا کوئی رجحان نہیں ملتا۔ جی، یہ ایک کافی دلچسپ فرق ہے دونوں شہروں میں۔ تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ کیا یہ محض کسی قسم کی توہم پرستی تھی یا مکہ کی آب و ہوا میں واقعی کوئی خرابی تھی؟ دیکھیں، یہ سوال اکثر ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ شاید یہ کوئی طبی وہم تھا، لیکن اصل وجہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت کے مکہ کا جغرافیائی اور معاشی نقشہ ذہن میں لانا ہوگا۔ اچھا، تو مطلب اس کا تعلق معیشت سے تھا؟ ایک طرح سے ہاں۔ مکہ محض ایک عام شہر نہیں تھا، بلکہ وہ اس دور کے جزیرے نما عرب کا آپ کہہ لیں کہ ٹائم سکوائر یا وال سٹریٹ تھا۔ وہ ایک بہت بڑا تجارتی اور بین الاقوامی ہب تھا جہاں یمن، شام اور دیگر خطوں سے تجارتی قافلے آتے تھے۔ صحیح، یعنی وہاں بہت رش اور چہل پہل رہتی ہوگی۔ بالکل، اور اس کی وجہ سے وہاں ایک کاسموپولیٹن ثقافت پروان چڑھ رہی تھی۔ مختلف زبانیں، تہذیبیں اور رسم و رواج آپس میں گھل مل رہے تھے۔ میں سمجھ رہی ہوں، یعنی وہ ایک ایسا پگھلتا ہوا برتن بن چکا تھا جہاں خالص عرب ثقافت اپنی اصل شکل میں برقرار نہیں رہ پا رہی تھی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو لوگ اپنے بچوں کو صرف اس لیے دور نہیں بھیجتے تھے کہ وہ دودھ پلانے والی ماؤں کے کسی توہم کا شکار تھے، بلکہ اصل وجہ بچوں کو صحرا کی صحت مند زندگی اور خالص عربی لہجہ سکھانا تھا۔ لیکن پھر بھی ایک ماں کا اپنے نوزائیدہ بچے کو خود سے دور صحرا میں بھیج دینا کیا محض ایک خالص زبان سیکھنے کے لیے اتنا بڑا جذباتی فیصلہ کیا جاتا تھا؟ یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل لگتی ہے۔ یہ حیرت بالکل فطری ہے، لیکن اس دور کے عربوں کے لیے زبان اور فصاحت و بلاغت محض بات چیت کا ذریعہ نہیں تھے، بلکہ یہ ان کا سب سے بڑا ثقافتی اثاثہ اور فخر تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ شہری ہجوم میں ان کی زبان کا خالص پن ختم ہو جائے گا۔ اچھا، تو زبان کی حفاظت ایک بڑا عنصر تھا۔ ہاں، مگر صرف زبان کا مسئلہ نہیں تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے صحرا کی کھلی اور سخت فضا میں پروان چڑھیں۔ صحرا کی زندگی بچوں میں وہ بہادری، مردانگی اور ذہنی سختی پیدا کرتی تھی جو شہری اور قدرے پرتائش ماحول میں ممکن نہیں تھی۔ یہ بات تو ہے۔
इसकी सबसे शानदार तारीखी मिसाल खुद पैगंबर इस्लाम की वालदा की है। वो एक बेवा माँ थी और उनके पास अपने शौहर की वाहिद निशानी उनका इकलौता बेटा था। और एक बेवा माँ के लिए अपने इकलौते बच्चे को दूर भेजना तो बहुत ही तकलीफदेह फैसला होगा। बिल्कुल, अगर ये सिर्फ एक आम रिवाज या तोहम परस्ती होती तो वो कभी ऐसा ना करती। उनका ये अमल साबित करता है कि बच्चों को बदुओं के पास भेजना उस मुआशरे की एक गहरी और नागुज़ीर समाजी जरूरत थी। ये मिसाल वाकई इस पूरी रिवायत की गहराई को वाज़े कर देती है। और मैं यहाँ नाजरीन से भी पूछना चाहूंगी कि क्या आपके ख्याल में आज के दौर में भी बच्चों की नशोनुमा पर शहरी माहौल के मुकाबले में कुदरती माहौल का इतना ही गहरा असर होता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। हाँ, लोगों की राय जानना दिलचस्प होगा। तो हमने देखा कि इस रिवाज से रिजाई रिश्ते बनते थे। किताब में आगे बताया गया है कि रिजाई माओं के साथ जो रिश्ता बनता था वो इतना ताकतवर हो जाता था कि रिजाई बहन भाइयों में शादी बिल्कुल उसी तरह ममनू करार दे दी गई जैसे खूनी रिश्तों में। जी, इस्लाम ने समाजी रिश्ते को बाकायदा कानूनी शक्ल दे दी और इसे खूनी रिश्ते के बराबर तकद्दुस दिया। सही। अब अगर कुदरती खूनी रिश्तों की तरफ आएं तो हर माशरे का एक फिल्टर होता है। वो तय करते हैं कि शादी के लिए कौन से रिश्ते दायरे के अंदर हैं और कौन से बाहर। तो किताब कदीम जमानों के मुकाबले में इस्लाम के इस शादी के फिल्टर की क्या तस्वीर कशी करती है? फिल्टर की ये तशबीह इस तस्वुर को समझने के लिए बेहतरीन है। अगर हम तारीख के औराक पलटें तो हमें मुख्तलिफ माशरों में ये फिल्टर बहुत मुख्तलिफ हालतों में मिलता है। मतलब पुराने माशरों में ये फिल्टर कैसा था? मिसाल के तौर पर कदीम यूनान में, खास तौर पर एथेंस और स्पार्टा में ये फिल्टर बहुत ही ढीला था। वहाँ एक ही बाप या एक ही माँ की औलाद यानी सौतेले बहन भाइयों के दरमियान शादी बाकायदा कानूनी और काबिल कबूल थी। अरे वाकई आज के दौर में तो ये सोचना भी मुहाल है। बिल्कुल। और अगर हम पुराने अहदनामे यानी ओल्ड टेस्टामेंट की तरफ देखें तो वहाँ एक शख्स को अपनी भतीजी या भांजी से शादी की इजाजत थी। इसके अलावा एक और कानून था जिसे लिवरेट कहा जाता था। लिवरेट ये क्या होता है? इस कानून के तहत अगर किसी शख्स का भाई लावालिद मर जाए तो जिंदा भाई पर लाजिम था कि वो अपनी बेवा भाभी से शादी करे ताकि मरने वाले का नाम बाकी रहे। यानी पुराने माशरों में इंतहाई करीबी रिश्तों में शादी की ना सिर्फ गुंजाइश थी बल्कि बाज़ सूरतों में तो ये बाकायदा एक समाजी मजबूरी थी। ऐसा ही था, लेकिन इस्लाम ने आकर इस फिल्टर की मुकम्मल रिस्ट्रक्चरिंग की। उसने खूनी रिश्तों की हुदूद को इंतहाई वाज़े और सख्त कर दिया। बहन, भाई, भांजी, भतीजी और दीगर करीबी रिश्तों में शादी को मुकम्मल तौर पर ममनू करार दे दिया। और जो बेवा भाभी से शादी वाला कानून था उसका क्या हुआ? इस्लाम ने इसे ना तो लाजमी करार दिया और ना ही उससे रोका। उसे महज एक समाजी ऑप्शन छोड़ दिया गया ताकि अगर बेवा को सहारे की जरूरत हो तो बाहमी रजामंदी से ऐसा किया जा सके, वरना कोई जबर नहीं। यहाँ मैं एक जदीद जहन का सवाल उठाना चाहूंगी। जब हम इस फिल्टर के सख्त होने की बात करते हैं तो जदीद दौर में कजन मैरिज यानी खानदानी शादियों पर तो बहुत तनकीद होती है। हाँ, आजकल मेडिकल साइंस इस पर काफी बहस करती है। बिल्कुल। साइंस और जिन्यात के माहिरीन मुसलसल ये बताते हैं कि नस्ल दर नस्ल कजन मैरिज से संगीन जिन्याती बीमारियां पैदा हो सकती हैं। तो अगर खूनी रिश्तों का फिल्टर इतना ही मुतवाजन था तो इस्लाम में कजन मैरिज को इतनी पजीराई क्यों मिली? देखें, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे किताब इंतहाई सराहत के साथ दूर करती है। जदीद मगरिबी मुआशरे से मुवाजना करते वक्त ये समझ लिया गया है कि शायद इस्लाम कजन मैरिज को लाजमी या फर्ज करार देता है। तो क्या ऐसा नहीं है? नहीं देता। उसने सिर्फ इसे जायज यानी परमिसिबल करार दिया है। पुराने अरब इसे पहले से करते आ रहे थे। तो फिर ये मशरकी माशरों में इतना आम क्यों हो गया? इसकी वजह मजहबी से ज्यादा कबायली और मुआशी थी। इस्लाम से पहले के अरब कबाइलों पर मबनी थे। खानदानी जायदाद को खानदान के अंदर रखने के लिए वो कजिन्स की शादी को तरजीह देते थे। यानी ये उनकी पुरानी रिवायत थी। हाँ, और इस्लाम ने आकर एक वसीतर समाजी तवाज़ुन कायम किया। आप इसको एक पेंडुलम की तरह देखें। पेंडुलम की तरह? वो कैसे? अगर शादी के दायरे को बहुत तंग कर दिया जाता यानी कजिन मैरिज को मुकम्मल हराम कर दिया जाता तो खानदान कट कर रह जाते, और अगर बहुत वसी कर दिया जाता तो मसाइल पैदा होते। इसलिए ये एक तवाज़ुन है। अच्छा, यानी ये महज एक प्रेशर वाल्व की तरह है जिसे आप जरूरत के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये कोई ऐसा कानून नहीं है जिसकी अंधी तकलीद की जाए। बिल्कुल सही समझिए आप। ये एक ऑप्शन है, कोई मजबूरी नहीं।
और नाजरीन, अगर आपको ये बहस दिलचस्प लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, तो ये खूनी रिश्तों का फिल्टर हो गया। अब जरा गुफ्तगू का रुख अकीदे और मजहब की तरफ मोड़ते हैं। जी, ये एक बहुत अहम पहलू है। खून के बाद अगर कोई चीज इंसानों को जोड़ती या तोड़ती है तो वो उनका अकीदा है। तारीख बताती है कि ज्यादातर मज़ाहिब बहुत कट्टर रहे हैं कि उनके मानने वाले किसी बाहर वाले से शादी ना करें। इस तारीखी पसे मंजर में इस्लाम का क्या उसूल है? तारीख का मुतालिया करें तो नजर आता है कि मजहब की बुनियाद पर शादी की दीवारें वाकई बहुत ऊंची रही हैं। यहूदी रिवायात में खास तौर पर तलमूदी कवानीन के तहत किसी गैर यहूदी के साथ शादी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। और ईसाइयत में इब्तदाई ईसाई उमूमन अपने मजहब से बाहर शादी के सख्त खिलाफ थे। उनका भी मानना था कि शादी हम अकीदा लोगों में होनी चाहिए। तो इस सख्त माहौल के मुकाबले में इस्लाम ने क्या मुख्तलिफ उसूल पेश किए? इस्लाम में भी यकीनन हम मजहब से शादी पहली तरजीह है, क्योंकि जब दो लोगों का बुनियादी नजरिया हयात एक होता है तो जिंदगी चलाना आसान हो जाता है। ये तो जाहिर सी बात है, हम-आहंगी ज्यादा होती है। लेकिन जो चीज हैरान कुन तब्दीली थी वो ये थी कि इस्लाम ने मुसलमान मर्दों को अहले किताब यानी यहूदी और ईसाई खवातीन से शादी की इजाजत दी है, बशर्ते के वो बुत परस्त ना हो। ये तो उस दौर के लिहाज से बैनुल मज़ाहिब हम-आहंगी का एक गैर मामूली कदम लगता है। लेकिन यहाँ मेरे जहन में एक सवाल उभरता है कि जब एक मुसलमान मर्द एक ऐसी औरत से शादी करेगा जिसका अकीदा मुख्तलिफ है, तो क्या इससे घर में तसादुम पैदा नहीं होगा? ये बहुत ही मंतकी सवाल है। देखिए, इजाजत होने का ये मतलब नहीं कि ये हमेशा अमली तौर पर सूदमंद भी हो। किताब इस बारीकी बीनी को वाज़ेह करती है। अच्छा, तो मतलब इसमें कुछ पेचीदगियां भी हैं? बिल्कुल। शौहर खानदान का सरबराह होता है, जिसे इस्लाम में कवाम कहा गया है, लेकिन वो बीवी पर अपना मजहब नहीं थोप सकता। यानी मर्द के सरबराह होने का मतलब ये नहीं कि वो औरत की मजहबी आजादी छीन ले। 100%। वो औरत अपने मजहब पर कायम रहने और अपनी इबादत करने में मुकम्मल आजाद है। ये बैनुल मजहब रवादारी और खैर सुगाली का एक अमली नमूना है। ये तसव्वुर तो बहुत खूबसूरत है। नाजरीन, आपका क्या तजुर्बा है? क्या मुख्तलिफ ख्यालात और पसे मंजर रखने वाले लोगों के दरमियान ताल्लुकात वाकई कामयाब हो सकते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, लोगों के अमली तजुर्बा सुनना बहुत दिलचस्प होगा। अच्छा, अब यहाँ सबसे बड़ा और मुश्किल सवाल आता है जिसे सुनकर शायद कोई भी मॉडर्न जहन चौंक जाए, और ये मेरे तजस्सुस की इंतहा भी है। जी पूछिए, क्या सवाल है? अगर मुसलमान मर्दों को गैर मुस्लिम अहले किताब खवातीन से शादी की इजाजत है, तो मुसलमान खवातीन के लिए गैर मुस्लिम मर्दों से शादी सख्ती से मना क्यों है? बज़ाहिर ये तो एक सरी दोहरा मयार लगता है। मैं समझ सकता हूँ कि बज़ाहिर ये दोहरा मयार महसूस होता है, लेकिन किताब इंतहाई सादगी से इसे बाहमी एहतराम यानी रेसिप्रोसिटी के उसूल से समझाती है। बाहमी एहतराम का उसूल, इसका इस ममानियत से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक बहुत गहरा है। जरा एक मुसलमान औरत के अकीदे को देखें। वो अपने ईमान के तहत हजरत मोहम्मद के साथ साथ हजरत मूसा और हजरत ईसा का भी पूरा एहतराम करती है। ये तो इसके ईमान का हिस्सा है। बिल्कुल। अब अगर वो किसी यहूदी या ईसाई मर्द से शादी करती है तो वो तो अपने शौहर के पैगंबर का मुकम्मल एहतराम करेगी, लेकिन क्या वो गैर मुस्लिम मर्द एक मुसलमान औरत के पैगंबर का एहतराम करेगा? इसके लिए तो ये लाजमी नहीं है। ओ, मैं समझ गई। तो मतलब वो एहतराम यकतरफा रह जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त। इस यकतरफा एहतराम की वजह से औरत के ईमान और रूहानी सुकून को खतरा लाहक हो सकता है। इस्लाम औरत को इस नफ्सियाती कश्मकश में नहीं डालना चाहता। ये बात तो वाकई बहुत गहरी है। मैंने कभी इस जाविये से सोचा ही नहीं था। लेकिन क्या इसकी कोई समाजी वजह भी थी? जी, इसका एक समाजी पहलू भी है। चूंकि शौहर खानदानी ढांचे का सरबराह और दर्जा देने वाला होता है, जिसे स्टेटस बेरर कहते हैं। हाँ, पुराने माशरों में तो खास तौर पर ऐसा ही था, और आज भी कई जगह ऐसा है। तो इस्लाम नहीं चाहता कि औरत अपने बुलंद रूहानी मर्तबे को किसी ऐसे शख्स के मातहत करे जो उसके अकीदे का एहतराम ही ना करे। यानी वो अपनी खवातीन को किसी गैर यकीनी रिश्ते के खतरे में नहीं डालना चाहते थे। हाँ, ऐतिहासिक एतबार से मर्दों को खानदान का मुहाफिज समझा जाता था, तो वो औरत के रूहानी और समाजी इस्तेसाल को रोकने के लिए ये फिल्टर लगाते थे।
और नाजरीन, अगर आपको भी ये नुक्ता नया और दिलचस्प लगा है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इससे फायदा उठाएं। जी, इल्म बांटने से बढ़ता है। अच्छा, हमने खून के फिल्टर की बात की, अकीदे की बात की। अब मैं आखिरी सवाल की तरफ बढ़ती हूँ। क्या नस्ल, रंग या समाजी रुतबा भी शादी के लिए कोई मुस्तकिल रुकावट है? इस्लाम में बिल्कुल नहीं। इस्लाम में समाजी तबका, नस्ल या रंग की बुनियाद पर शादी में कोई कतई रुकावट नहीं है। लेकिन फिर हमने वो कफात का लफ्ज बहुत सुना है। फिक़हा जिस माशरती मसावात की बात करते हैं वो क्या है? क्या ये जात पात का निज़ाम नहीं? नहीं, ये जात पात बिल्कुल नहीं है। फुक़हा जिस कफायत की बात करते हैं वो महज एक एहतियाती तदबीर है ताकि शादी मुस्तहकम रहे। अच्छा, वो किस तरह? देखें, अगर दो लोगों के लाइफस्टाइल, तालीम और माशी पसे मंजर में बहुत ज्यादा फर्क हो तो रोजमर्रा जिंदगी में मसाइल पैदा हो सकते हैं। ये तलाक से बचने के लिए एक अमली मशवरा है। यानी ये कोई पत्थर पर लकीर नहीं है? बिल्कुल नहीं। औरत या उसका सरपरस्त इस शर्त को अपनी मर्जी से खत्म भी कर सकते हैं। असल शर्त सिर्फ बाहमी रजामंदी और किरदार है। ये तो बहुत लचकदार निजाम है। तो अगर हम इस पूरी बहस का इख्तिताम करें तो मेरे ज़हन में एक बहुत ही फिक्र अंगेज ख्याल आ रहा है। जी बताइए। जरा गौर करें, ये तमाम हुदूद जिन्हें हम महज पाबंदियां समझते हैं, ये दरअसल एक जबरदस्त सोशल इंजीनियरिंग की अक्कासी करती हैं। एक ऐसा निजाम जो एक तरफ खानदानों को जोड़ने का मौका देता है और दूसरी तरफ इंसान के अकीदे को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। बिल्कुल, ये एक हैरत अंगेज तवाज़ुन है। तो क्या आज की तेज रफ्तार और बज़ाहिर तन्हा दुनिया में ये रिवायती तवाज़ुन हमारी खानदानी जिंदगियों को वो इस्तेहकाम नहीं दे सकता जिसकी हमें तलाश है? नाजरीन, मैं चाहूंगी कि आप इस मौजू के हवाले से अपना नुक्ता नज़र और तजुर्बात कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और ये भी बताएं कि आप कौन सी दूसरी किताब चाहते हैं कि हम अपनी अगली तालीमी बहस का हिस्सा बनाएं। किताब का नाम कमेंट्स में जरूर लिखें। बिल्कुल, आपकी आरा का हमें इंतजार रहेगा। तमाम देखने वालों का शुक्रिया, और जाने से पहले एक बार फिर याद दिलाती चलूं कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मालूमाती मवाद को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमें सपोर्ट करें। जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।